یہ ویڈیو جرمنی کی وفاقی وزارت برائے اقتصادی تعاون و ترقی اور GIZ کی تکنیکی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ لوکل گورنمنٹ الیکشن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ حکومت خیبر پختونخوا نے تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی آمدن کے ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے فائنینشیل ریکارڈز اینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم یعنی FRIMS کا اجرا کیا ہے۔ ریونیو ٹرانزیکشنز مینیو۔ ریونیو ٹرانزیکشنز مینیو تک ایڈمن یوزر یا وہ یوزر جو ایکسیس رائٹ رکھتا ہو ایکسیس حاصل کر سکتا ہے۔ ریونیو مینیو کے لیے اپنے منتخب شدہ ہوم سکرین کے ٹاپ لیفٹ کارنر میں ریونیو مینیو ٹیب پر کلک کریں۔ اس مینیو کے ذریعے یوزر ریونیو کلیکشن ٹرانزیکشن کر سکتا ہے، چاہے وہ کانٹریکچوئل، ڈپارٹمنٹل یا بلنگ کے ذریعے کی گئی ہو۔ یعنی ڈپارٹمنٹل ریونیو کی وصولی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کی جاتی ہے، کانٹریکچوئل ریونیو کی وصولی کانٹریکٹرز کی طرف سے کی جاتی ہے، بلنگ ریونیو کی وصولی بل کا اجرا کر کے کی جاتی ہے۔ اس کام کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، ریونیو مینیو میں ٹرانزیکشنز ٹیب پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے ٹرانزیکشنز اسکرین کھل جائے گی جس میں ریونیو ہیڈز کی فہرست اور اس کی ٹرانزیکشن ڈیٹیلز موجود ہوں گے۔ کسی بھی ریونیو ہیڈ کو کھولنے کے لیے اس پر کلک کریں۔ پراپرٹی ٹیکس۔ ٹرانزیکشنز اسکرین پر نیچے ریونیو ہیڈز کی فہرست میں پراپرٹی ٹیکس کا آپشن دیا گیا ہے۔ یہ اسکرین ڈپارٹمنٹل یا کانٹریکچوئل طریقے سے کی گئی پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پراپرٹی ٹیکس پر کلک کرنے سے پراپرٹی ٹیکس کا اسکرین کھل جائے گا۔ پراپرٹی ٹیکس سے متعلق ٹرانزیکشنز کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، کریٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے پراپرٹی ٹیکس انٹری کی اسکرین کھل جائے گی۔ اسکرین پر مانگی گئی ڈیٹیلز درج کریں اور کریٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اس سے نئی پراپرٹی ٹیکس انٹری لسٹ میں آ جائے گی۔ اسکرین پر ایڈٹ کا آپشن بھی دیا گیا ہے۔ اس آپشن سے کسی بھی پراپرٹی ٹیکس معلومات کو ایڈٹ یا اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کی چینجز کے بعد اپلائی چینجز پر کلک کر کے تمام چینجز سیو کریں۔ یہ آپشن فہرست میں منتخب کردہ ٹرانزیکشنز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں۔ لائسنس فی۔ ٹرانزیکشنز اسکرین پر نیچے ریونیو ہیڈز کی فہرست میں لائسنس فی کا آپشن دیا گیا ہے۔ یہ اسکرین ڈپارٹمنٹل یا کانٹریکچوئل طریقے سے کی گئی لائسنس فی کی وصولی کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لائسنس فی پر کلک کرنے سے لائسنس فی کا اسکرین کھل جائے گا۔ لائسنس فی سے متعلق ٹرانزیکشنز کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، کریٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے لائسنس فی انٹری کی اسکرین کھل جائے گی۔ اسکرین پر مانگی گئی ڈیٹیلز درج کریں اور کریٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اس سے نئی لائسنس فی انٹری لسٹ میں آ جائے گی۔ اسکرین پر ایڈٹ کا آپشن بھی دیا گیا ہے۔ اس آپشن سے کسی بھی لائسنس فی معلومات کو ایڈٹ یا اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کی چینجز کے بعد اپلائی چینجز پر کلک کر کے تمام چینجز سیو کریں۔ یہ آپشن فہرست میں منتخب کردہ ٹرانزیکشن کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں۔ ٹوائلٹ فی۔ ٹرانزیکشنز اسکرین پر نیچے ریونیو ہیڈز کی فہرست میں ٹوائلٹ فی کا آپشن دیا گیا ہے۔ یہ اسکرین ڈپارٹمنٹل یا کانٹریکچوئل طریقے سے کی گئی ٹوائلٹ فی کی وصولی کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ٹوائلٹ فی پر کلک کرنے سے ٹوائلٹ فی کا اسکرین کھل جائے گا۔ ٹوائلٹ فی سے متعلق ٹرانزیکشنز کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، کریٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے ٹوائلٹ فی انٹری کی اسکرین کھل جائے گی۔ اسکرین پر مانگی گئی ڈیٹیلز درج کریں اور کریٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اس سے نئی ٹوائلٹ فی انٹری لسٹ میں آ جائے گی۔ اسکرین پر ایڈٹ کا آپشن بھی دیا گیا ہے۔ اس آپشن سے کسی بھی ٹوائلٹ فی معلومات کو ایڈٹ یا اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کی چینجز کے بعد اپلائی چینجز پر کلک کر کے تمام چینجز سیو کریں۔ یہ آپشن فہرست میں منتخب کردہ ٹرانزیکشن کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں۔ بلڈنگ فی۔ ٹرانزیکشنز اسکرین پر نیچے ریونیو ہیڈز کی فہرست میں بلڈنگ فی کا آپشن دیا گیا ہے۔ یہ اسکرین ڈپارٹمنٹل یا کانٹریکچوئل طریقے سے کی گئی بلڈنگ فی کی وصولی کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بلڈنگ فی پر کلک کرنے سے بلڈنگ فی کا اسکرین کھل جائے گا۔ بلڈنگ فی سے متعلق ٹرانزیکشنز کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، کریٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے بلڈنگ فی انٹری کی اسکرین کھل جائے گی۔ اسکرین پر مانگی گئی ڈیٹیلز درج کریں اور کریٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اس سے نئی بلڈنگ فی انٹری لسٹ میں آ جائے گی۔ اسکرین پر ایڈٹ کا آپشن بھی دیا گیا ہے۔ اس آپشن سے کسی بھی بلڈنگ فی کی معلومات کو ایڈٹ یا اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔
किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। ये ऑप्शन फहरिस्त में मुंतखब करदा ट्रांजैक्शन को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन दबाएं। कॉम्पोजिशन फी, फाइन, ट्रांजैक्शंस स्क्रीन पर नीचे रेवेन्यू हेड्स की फहरिस्त में कॉम्पोजिशन फी, फाइन का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन डिपार्टमेंटल या कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से की गई कॉम्पोजिशन फी, फाइन की वसूली को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। कॉम्पोजिशन फी पर क्लिक करने से कॉम्पोजिशन फी का स्क्रीन खुल जाएगा। कॉम्पोजिशन फी से मुतालिक ट्रांजैक्शंस करने का तरीकाकार ये है। क्रिएट के बटन पर क्लिक करने से आपके सामने कॉम्पोजिशन फी एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे नई कॉम्पोजिशन फी एंट्री लिस्ट में आ जाएगी। स्क्रीन पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन से किसी भी कॉम्पोजिशन फी मालूमात को एडिट या अपडेट किया जा सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। ये ऑप्शन फहरिस्त में मुंतखब करदा ट्रांजैक्शन को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन दबाएं। Miscellaneous ट्रांजैक्शंस स्क्रीन पर नीचे रेवेन्यू हेड्स की फहरिस्त में Miscellaneous का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन डिपार्टमेंटल या कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से की गई Miscellaneous फी की वसूली को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। Miscellaneous पर क्लिक करने से Miscellaneous का स्क्रीन खुल जाएगा। Miscellaneous फी से मुतालिक ट्रांजैक्शंस करने का तरीकाकार ये है। क्रिएट के बटन पर क्लिक करने से आपके सामने Miscellaneous एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे नई Miscellaneous फी एंट्री लिस्ट में आ जाएगी। स्क्रीन पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन से किसी भी Miscellaneous फी मालूमात को एडिट या अपडेट किया जा सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। ये ऑप्शन फहरिस्त में मुंतखब करदा ट्रांजैक्शन को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन दबाएं। रेंट ऑफ म्युनिसिपल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस स्क्रीन पर नीचे रेवेन्यू हेड्स की फहरिस्त में रेंट ऑफ म्युनिसिपल प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन बिलिंग सिस्टम के जरिए म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज के किरायों की वसूली की मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होती है। रेंट ऑफ म्युनिसिपल प्रॉपर्टी पर क्लिक करने से रेंट ऑफ म्युनिसिपल प्रॉपर्टी का स्क्रीन खुल जाएगा। रेंट ऑफ म्युनिसिपल प्रॉपर्टी से मुतालिक ट्रांजैक्शंस करने का तरीकाकार ये है। तमाम म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज के बिल तैयार करने के लिए जनरेट ऑल बिल्स के बटन पर क्लिक करें। करंट पीरियड के लिए तमाम म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज के बिल की रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑल बिल के बटन पर क्लिक करें। करंट पीरियड के लिए मुंतखब करदा म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज के बिल की रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए प्रिंट सेलेक्टेड बिल्स के बटन पर क्लिक करें। बिल जनरेट का ऑप्शन मैनुअल तौर पर प्रॉपर्टी के किराए का बिल तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। बिल नंबर का बटन तैयार करदा प्रॉपर्टी रेंट बिल को एडिट मोड में खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके बाद आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से तैयार करदा प्रॉपर्टी रेंट बिल को डिलीट भी किया जा सकता है। कस्टमर्स लिस्ट में किसी भी कस्टमर की तमाम मालूमात और पेमेंट हिस्ट्री देखने के लिए इसके नाम पर क्लिक करें, जिससे आपके सामने मुंतखब करदा कस्टमर की फुल पेमेंट हिस्ट्री की विंडो खुल जाएगी। यूजर किसी पेड बिल की एंट्री को एडिट या डिलीट भी कर सकता है। वाटर रेट ट्रांजैक्शन स्क्रीन पर नीचे रेवेन्यू हेड्स की फहरिस्त में वाटर रेट बिलिंग का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन बिलिंग सिस्टम के जरिए वाटर रेट बिल्स की वसूली की मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होती है। वाटर रेट पर क्लिक करने से वाटर रेट का स्क्रीन खुल जाएगा। वाटर रेट से मुतालिक ट्रांजैक्शंस करने का तरीकाकार ये है। करंट पीरियड के लिए तमाम वाटर रेट बिल्स तैयार करने के लिए जनरेट ऑल बिल्स के बटन पर क्लिक करें। करंट लाइन के सिर्फ एक बिल तैयार करने के लिए बिल जनरेट के बटन पर क्लिक करें। बिल नंबर का बटन तैयार करदा वाटर रेट बिल को एडिट मोड में खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके बाद आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से तैयार करदा वाटर रेट बिल को डिलीट भी किया जा सकता है। करंट पीरियड के तमाम वाटर रेट बिल्स की रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑल बिल के बटन पर क्लिक करें। करंट पीरियड के मुंतखब करदा वाटर रेट बिल्स की रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए प्रिंट सेलेक्टेड बिल्स के बटन पर क्लिक करें। कस्टमर्स लिस्ट में किसी भी कस्टमर की तमाम बिल पेमेंट की मालूमात देखने के लिए इसके कस्टमर कोड पर क्लिक करें, जिससे आपके सामने मुंतखब करदा कस्टमर की फुल पेमेंट हिस्ट्री की विंडो खुल जाएगी। क्रिएट के बटन पर क्लिक करने से आपके सामने वाटर रेट बिल पेमेंट की स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और क्रिएट के बटन पर क्लिक करें। इससे नई वाटर रेट बिल पेमेंट एंट्री लिस्ट में आ जाएगी।
स्क्रीन पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन से करंट बिल पेमेंट की मालूमात को एडिट या अपडेट किया जा सकता है, लेकिन ये ऑप्शन पिछले माली दौरानिये के लिए लागू नहीं होता। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। ये ऑप्शन फहरिस्त में मुंतखब करदा ट्रांजैक्शन को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन दबाएं। साइन बोर्ड फी। ट्रांजैक्शंस स्क्रीन पर नीचे रेवेन्यू हेड्स की फहरिस्त में साइन बोर्ड फी का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन डिपार्टमेंटल या कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से की गई साइन बोर्ड फी की वसूली को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। साइन बोर्ड फी पर क्लिक करने से साइन बोर्ड फी का स्क्रीन खुल जाएगा। साइन बोर्ड फी से मुतालिक ट्रांजैक्शंस करने का तरीका कार ये है। कस्टमर्स लिस्ट में किसी भी कस्टमर या कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट की मालूमात देखने के लिए मुताल्लिका कस्टमर के नाम पर क्लिक करें, जिससे आपके सामने मुंतखब करदा कस्टमर की पेमेंट की तमाम मालूमात की विंडो दाईं तरफ खुल जाएगी। क्रिएट के बटन पर क्लिक करने से आपके सामने साइन बोर्ड फी एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और क्रिएट के बटन पर क्लिक करें। इससे मौजूदा माली मुद्दत की नई ट्रांजैक्शन एंट्री लिस्ट में आ जाएगी। स्क्रीन पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन से कलेक्शन ट्रांजैक्शन की मालूमात को एडिट या अपडेट किया जा सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। ये ऑप्शन फहरिस्त में मुंतखब करदा ट्रांजैक्शन को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन दबाएं। कैटल फेयर। ट्रांजैक्शंस स्क्रीन पर नीचे रेवेन्यू हेड्स की फहरिस्त में कैटल फेयर का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन डिपार्टमेंटल या कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से की गई कैटल फेयर की वसूली को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। कैटल फेयर पर क्लिक करने से कैटल फेयर का स्क्रीन खुल जाएगा। कैटल फेयर से मुतालिक ट्रांजैक्शंस करने का तरीका कार ये है। कस्टमर्स लिस्ट में किसी भी कस्टमर या कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट की मालूमात देखने के लिए मुताल्लिका कस्टमर के नाम पर क्लिक करें, जिससे आपके सामने मुंतखब करदा कस्टमर की पेमेंट की तमाम मालूमात की विंडो दाईं तरफ खुल जाएगी। क्रिएट के बटन पर क्लिक करने से आपके सामने कैटल फेयर एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और क्रिएट के बटन पर क्लिक करें। इससे मुंतखब करदा कस्टमर या कॉन्ट्रैक्ट की मौजूदा माली मुद्दत की नई ट्रांजैक्शन एंट्री लिस्ट में आ जाएगी। स्क्रीन पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन से कलेक्शन ट्रांजैक्शन की मालूमात को एडिट या अपडेट किया जा सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। ये ऑप्शन फहरिस्त में मुंतखब करदा ट्रांजैक्शन को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन दबाएं। बस स्टैंड फी। ट्रांजैक्शन स्क्रीन पर नीचे रेवेन्यू हेड्स की फहरिस्त में बस स्टैंड फी का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन डिपार्टमेंटल या कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से की गई बस स्टैंड फी की वसूली को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। बस स्टैंड फी पर क्लिक करने से बस स्टैंड फी का स्क्रीन खुल जाएगा। बस स्टैंड फी से मुतालिक ट्रांजैक्शंस करने का तरीका कार ये है। कस्टमर्स लिस्ट में किसी भी कस्टमर या कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट की मालूमात देखने के लिए मुताल्लिका कस्टमर के नाम पर क्लिक करें, जिससे आपके सामने मुंतखब करदा कस्टमर की पेमेंट की तमाम मालूमात की विंडो दाईं तरफ खुल जाएगी। क्रिएट के बटन पर क्लिक करने से आपके सामने बस स्टैंड फी एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे मुंतखब करदा कस्टमर या कॉन्ट्रैक्ट की मौजूदा माली मुद्दत की नई ट्रांजैक्शन एंट्री लिस्ट में आ जाएगी। स्क्रीन पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन से कलेक्शन ट्रांजैक्शन की मालूमात को एडिट या अपडेट किया जा सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। ये ऑप्शन फहरिस्त में मुंतखब करदा ट्रांजैक्शन को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन दबाएं। स्लॉटर हाउस फी लिस्ट। ट्रांजैक्शन स्क्रीन पर नीचे रेवेन्यू हेड्स की फहरिस्त में स्लॉटर हाउस फी लिस्ट का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन डिपार्टमेंटल या कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से की गई स्लॉटर हाउस फी की वसूली को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्लॉटर हाउस फी लिस्ट पर क्लिक करने से स्लॉटर हाउस फी लिस्ट का स्क्रीन खुल जाएगा। स्लॉटर हाउस फी लिस्ट से मुतालिक ट्रांजैक्शन करने का तरीका कार ये है। कस्टमर्स लिस्ट में से किसी भी कस्टमर या कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट की मालूमात देखने के लिए उस कस्टमर के नाम पर क्लिक करें, जिससे आपके सामने मुंतखब करदा कस्टमर की पेमेंट की तमाम मालूमात की विंडो दाईं तरफ खुल जाएगी। क्रिएट के बटन पर क्लिक करने से आपके सामने स्लॉटर हाउस फी एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे मौजूदा माली मुद्दत की नई कलेक्शन ट्रांजैक्शन एंट्री लिस्ट में आ जाएगी। स्क्रीन पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है।
इस ऑप्शन से कलेक्शन ट्रांजैक्शन की मालूमात को एडिट या अपडेट किया जा सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। ये ऑप्शन फहरिस्त में मुंतखब करदा ट्रांजैक्शन को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन दबाएं।